Hello friends, welcome back. Today we are going to start similar triangles. Okay, so we are going to study the conditions related to the similarity of triangles. Okay, then which conditions are required for the similar triangles. Okay, here two triangles are ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स है उनको सिमिलरिटी दिखाने के लिए और सिमिलर ट्रायंगल्स है दिखाने के लिए कौन से कंडीशंस लगते हैं ये देखने जा रहे हैं। ओके, सो हियर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज we are going to say, look at here, in this triangle, in triangle ABC and triangle DEF, okay, both triangles, in that angle A, okay, this angle A is congruent sign is here, congruent to angle D, मतलब जो angle A and angle D है जो same है, okay, and second angle B is congruent to angle E, ओके जो बी एंगल एंड ई एंगल एक कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे नोटेशन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये दो डॉट से लाइन्स है, यहाँ पे दो लाइन्स है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ए और ई नहीं हो सकते और बी और डी नहीं हो सकते, यहाँ पे जो ए और डी है बी और ई है। ओके, एंड लास्ट एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू द angle F, right, this angle congruent to this angle. Okay, in that two triangles we have three angles are congruent, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में जो ये थ्री एंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट्स है। ओके, अगेन वी कैन से द अनदर थिंग हियर, ओके, ए बी, ओके, दिस ए बी अपॉन डी ई, मतलब रेशो ऑफ साइड ए बी to side DE is equal to the ratio of side BC upon EF equals to the ratio of AC upon DF आर इक्वल्स, मतलब जो रेशो है ए बी अपॉन डी ई जो मिल रहा है रेशो, इनका रेशो क्या है, इक्वल्स है किससे, बी सी अपॉन ई एफ से एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। मीन्स ये जो ए बी लेंथ है और जो उनकी मेजरिंग जब हम लेंगे, एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 या 2, यहाँ पे भी 2 है, तो इनका 2/2 मतलब कितना 1, मतलब इन दोनों का सब रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बताया है, ये रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। सो वी कैन से द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, because of above information, all angles are similar, okay, congruent to each other, and all sides, ratio of all sides are equal to the ratio of AB and DE is, and second is a BC upon DEF, and third is a AC upon DF. Okay, so we can say the triangle ABC and triangle DEF are similar, okay, because of our above information, but it is expressed as a triangle ABC is similar sign to triangle DEF. Okay, it can be written as, or it can be write likewise. Okay, triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, here is condition, we want to the angles are equal, sides are equals, ratio of sides are equals. Okay, so few conditions are required for the similarity of triangles, but in case we can take in that angles equals या sides equals, then we have some conditions और टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स। देखो अभी यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे सब सिमिलर है, मतलब जो एंगल्स है ए बी सी एंगल डी ई एफ एंगल्स उसके साइड सब सिमिलर है, बट इन सम केसेस देर आर फ्यू पॉइंट्स आर इक्वल्स, मतलब जब दूसरे ट्रायंगल्स देखने जाएंगे तो उसमें से थोड़े ही पॉइंट्स इक्वल्स रहते हैं, मतलब कोई एंगल इक्वल रहता है, कभी साइड्स इक्वल रहती है, तो इससे हम कैसे पता चले कि ये ट्रायंगल्स इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है।
So we have some test like AA test, matlab okay, we have some test means angle means ये जो तीनों एंगल से सेम रहेंगे तो साइड ट्रायंगल्स भी क्या रहेंगे सेम रहे, मतलब ए टेस्ट एंगल एंड एंगल टेस्ट ऑल्सो. Okay, in triangle both triangles two angles are similar, then third angle are automatically similar. Next is a side angle side means SAS test. In that two sides and in between angle are similar, so that will be the triangles are similar. Okay, next is a yes means both three sides are equals, then the triangles are equals. Okay, so these are four tests for the similarity of triangles we are going to study. ये दो चार जो टेस्ट है वो हम देखने जा रहे हैं, मतलब एंगल इन तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल्स के सिमिलर रहेंगे तो ये ट्रायंगल्स सेम रहते हैं. ओके, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ट्रायंगल्स क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे. एंगल एंड एंगल मतलब दो एंगल कौन से भी सिमिलर रहेंगे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं. तो साइड एंगल साइड्स, ओके, हियर साइड and side in between the angle is similar, okay, then the congruents are similar, the triangles are similar, then sides are congruent to each other, then both triangles are similar. okay, मतलब इन एक कंडीशन से जो हम अभी स्टडी करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टेस्ट इज अ ए मतलब एंगल test for similarity of triangle. I can write like this. Okay, this is a test for similarity of triangle. Okay, consider the two triangles. I am drawing here triangles. Here two triangles are here. Okay, one is a ABC and second is a PQR. Okay, then I am showing here angles. Okay, so A angle is congruent to P angle, B angle congruent to Q angle, and C angle congruent to R angle. Okay, so how can it write? So consider here triangle ABC and triangle PQR. Okay, so in that we are going to show angle A is congruent to angle P. Right, here is notation, and angle B is congruent to angle Q, and last one is the angle C is congruent to angle R. ओके, ये जो एंगल्स है ये क्या है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट्स है, मतलब सिमिलर है. जो ट्रायंगल्स है उसमें क्या है, ट्रायंगल्स में जो एंगल्स है ये क्या है कॉन्ग्रुएंट्स है. ओके, देन जो ए बी सी ट्रायंगल है करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों करस्पॉन्ड्स टू ईच अदर. सो वी कैन से the angles are congruent to each other. When the three angles are congruent to each other, then the triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, जब ए टेस्ट पास करनी है या कोई ए टेस्ट हमें देखनी है उसमें जो बताया हुआ है तो एंगल के आप जो डिनोशन है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल देंगे, दो ट्रायंगल्स दे देंगे और आपको डिनोट करेंगे कि बता देंगे, नोट देंगे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है. एंगल से जब लाइंस रहते हैं मतलब साइड सेम रहते हैं तो साइड के ऊपर कुछ मार्क रहेगा, एंगल सेम रहते हैं तो एंगल बताएंगे. तो यहाँ पे देखो तीनों एंगल डिनोट किए हैं. ओके, यहाँ पे तीनों एंगल को मार्क किया हुआ है, तो आप इससे बता सकते हैं कि ये क्या है, एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है. ठीक है, तो इसके वजह से हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है, क्योंकि देखो जब एंगल सिमिलर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका रेशो जो है
लेंथ का साइड का ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. ये रेशो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा. Okay, that's why we can say the triangle ABC is a similar to the triangle PQR by passing AA test. Okay, it is why congruent because it passes AAA test of for the similarity of triangle. Okay, तो आपको ये ऐसा बताना रहता है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं. चलो सेकेंड वाला एंगल कॉन्ग्रुएंसी. उसमें भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, दो एंगल्स आपको दिए जाते हैं. ओके, टेक डाउन द सेकेंड कंडीशन और ए टेस्ट. ओके, फॉर दैट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कंसिडर हियर ट्रायंगल ABC सेम ABC and triangle PQR. Okay, in that we can say angle B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R. Okay, both B and C and Q and R are congruent to each other. Okay, automatically third angles also congruent to each other. ओके देखो, जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो एंगल सेम आ रहे हैं, तो ये आगे जाके ट्रायंगल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे भी जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ओके, बाय पासिंग द टेस्ट AA. ओके, AA टेस्ट मतलब एंगल टेस्ट पासेस टू सिमिलरिटी. ओके, जब सिमिलर आ रहे हैं तो कौन सी टेस्ट पास करे, ये भी आपको बताना ज़रूरी है. ओके, टेक डाउन द थर्ड कंडीशन और थर्ड टेस्ट इज SAS मतलब साइड एंगल साइड. कौन सी है, साइड एंगल एंड साइड. ओके, लुक एट हियर, आई एम ड्राइंग हियर ट्रायंगल्स. द ट्रायंगल KLM. Okay, this is first triangle and here look at here, this is the angle showing here and 1 and 2 here. Okay, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है KLM ट्रायंगल. यहाँ पे जो साइड है उसको यहाँ पे दिया है, नंबर लेंथ दी है, यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे 2 है और जो ये एंगल यहाँ पे दिखाया हुआ है. मतलब देखो साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड. ओके, सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है. Look at your triangle RST. Here is a side is a RS is 1.5. Here is the angle and ST is a 3. Okay, so in condition of SAS triangle, the corresponding triangles or corresponding vertices of two triangles, if two pairs of corresponding sides, okay, two pairs, ये दोनों sides है and angle between them. ओके, एंगल बिटवीन देम मतलब इधर का हो या इधर का हो, ये नहीं चलेगा. जो साइड्स है उनके बीच का ही एंगल चाहिए. राइट, मतलब साइड एंगल साइड एक लाइन में जाना चाहिए. मतलब साइड एंगल साइड ऐसा नहीं रहेगा, साइड एंगल साइड ऐसा नहीं. जो दो साइड से उनके बीच में जो एंगल आएगा वही हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए. राइट, सो वी कैन से हियर द कंडीशंस लाइक एंगल KLM is congruent to angle RST. मतलब angle L is congruent to angle S. Okay, and another thing is here we can say KL upon RS is equal to LM upon ST. जो रेशो है, ओके, जो रेशो है क्या है, इक्वल है. तो कितना है, 2.3. okay, 2/3. so here ratio we can find out here. Okay, look at here, KL is a 1, RS is equal to 1.5 equals to LM is a 2 and ST is a 3. then this is simplify again, then we get the 1.5. मतलब this equals to this. जब हम रेशियो लेते हैं, जो साइड्स है KL साइड है, RS साइड से हम रेशियो, बस जब रेशियो लेते हैं तो यही साइड्स का लेना है, इसी के साथ ही लेना है. क्योंकि जो एक साइड से जाना है हमें, ये साइड है तो यही साइड आएगा, एंगल की लेफ्ट साइड है, एंगल की राइट साइड है. तो यहाँ पे जो
के एल लिया तो यहाँ पे आर एस ही लेना है, तो के एल अपॉन आर एस 1/1.5, ओके। एल एम अपॉन एस टी मतलब एल एम अपॉन एस टी इज 2/3, then it gets simplified, we get the 1/1.5, then it is equals to that. Then we can say the ratio of the angle, side of angles are equals, okay. That's why we have written here 2/3. So we can say that triangle KLM is similar to triangle RST, okay. This is our last conclusion. Then they will similar by passing test SAS, okay. Which test? SAS मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट पास करते हैं, उसमें से सब आपको मिल रहा है, साइड इक्वल्स एंगल्स एंड अगेन साइड, सो वी कैन से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स, ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है ये कौन से टेस्ट से सिमिलर हो रहा है, साइड एंगल साइड से, ओके। जब हम साइड एंगल साइड टेस्ट ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है जो बीच का एंगल है वो बीच में ही होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, दिस इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। Okay, take down the fourth and last condition or the similarity of triangle test is a yes मतलब क्या है, side test for the similarity of triangles, okay. Then two corresponding, okay, here two triangles are corresponding vertices, okay. So I am going to draw here the triangles. Here is the first triangle, okay. This is a PQR and this is a second triangle, this is a XYZ, okay. So here are two triangles, okay. One is a triangle PQR and second triangle is a XY and Z, right. So we can say when the SAS test passes by two triangles, then okay, PQ upon YZ equals to QR upon XY equals to, last one is a PR upon XZ, right. Means here we are shown the ratio of sides of triangles, right. Then I am going to show PQ, here is a PQ is upon YZ, okay. The ratio of PQ and YZ is equal to QR, this is our QR upon XY, okay. Then PR, this is a PR and last is a XZ, okay. The PQ and YZ आर सेम, ओके। यहाँ पे जो हमें टेस्ट देनी है साइड की, तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल्स होने चाहिए, ओके। मतलब एक दूसरे को, जो PQ है वो YZ इक्वल्स है, मतलब इनका रेशियो जो है वो आएगा इक्वल्स किसके, QR, जो यहाँ पे QR है एंड अपॉन XY, ओके। इसका इक्वल्स कितना आना है, मतलब ये तीनों इक्वल्स आने, लास्ट वन कौन सा है, PR अपॉन XZ, ओके। तो ये रेशियो जो है ये सिमिलर आएगा, तो ऑटोमेटिकली एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन से अबाउट द इंफॉर्मेशन द ट्रायंगल PQR is similar to triangle XYZ, okay. When we get the ratio of sides are equals, then the triangles will be similar, okay. जो रेशियो है साइड के जब इक्वल आते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स जो है इक्वल है, ओके। सो सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द सिमिलर ट्रायंगल्स, जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसके रिलेटेड होते हैं, तो ये हम देखते हैं, ओके। टेक डाउन द क्वेश्चन, यू आर लुकिंग हियर two triangles PMN and UVW, okay. PM is a 6, here is a one angle C, okay, and MN is a 10. Then we want to show the triangle
of similarity. Okay, but the which test is passes to triangle PMN and UVW. ओके, ये ट्रायंगल जो है ये दिखाना है हमें कि कौन से टेस्ट पास करते हैं. ओके, सो कंसिडर फर्स्ट ट्रायंगल PMN and triangle UVW. Okay, you look at here measurements or the here PM, length of PM is given here, UV, length of UV also given here. Here is the angles are given similar to each other, and MN and VW. Okay, so we can say this one test is, which one test passes the triangles? Yes, side angle side. Okay, but we want to prove this. Okay, to prove side angle side test. Okay, then come to the point, PM upon UV equals to MN upon VW. मतलब जो रेशो ऑफ एंगल्स साइड्स है तो आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है, राइट. सो राइट डाउन द नंबर्स और वैल्यूज 6/3 equals to 10/5, right. Then we can say or simplify it, 2/1 equals to 2/1, right. Then it is a similar or equal values, means we can prove the area ratio of sides are equals. Then again next is the angle of PMN is congruent to angle UVW, because here is a shown to you. ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये एंगल सेम है. सो वी कैन से द ट्रायंगल PMN is similar to triangle UVW by passing test. Which one? Yes, side angle side test. Okay, it passes the side angle side test. Okay.